I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is working in Windows 7. In this chapter, we will learn starting Windows Explorer, viewing files and folders, working with control panel, about fonts, changing the mouse settings, why to double click the mouse, put your computer in sleep mode. Windows is an operating system launched by Microsoft in 2009 as an upgrade to the Windows Vista operating system. This operating system has simplified the task of managing data in a computer. Windows Explorer is the main tool that you use to interact with Windows 7. You need to use the Windows Explorer to view, explore or organize libraries, files and folders. तो आपका जो Windows 7 है या in general Windows है, it is a kind of operating system जो कि आपके कंप्यूटर में सबसे पहले लोड करा जाता है. अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर इसके बाद आते हैं. तो Windows 7 is nothing but an upgradation to a Windows Vista जो कि Windows 7 से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता था. ये जो Windows 7 होता है इसमें आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, फाइल्स होती हैं आपकी उसको आप स्टोर कर सकते हैं, डेटा मैनेज कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट Windows 7 पे आप बहुत सारी अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके काम कर सकते हैं. Starting Windows Explorer. We can open Windows Explorer in two ways. Step 1. Right click on the Start button and select Open Windows Explorer option. Or Step 2. Click on the Start, All Programs, Accessories, Windows Explorer. तो आपका Windows Explorer खोलने के दो तरीके हैं. सबसे पहला है आपको राइट क्लिक करना है आपके स्टार्ट बटन पे और उसके बाद आपको ओपन करना है Windows Explorer, तो भी खुल जाएगा. दूसरा तरीका है आपको सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है. स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है. ऑल प्रोग्राम्स पे जाने के बाद आपको एक्सेसरीज पे जाना है और एक्सेसरीज में आपके पास ऑप्शन आएगा Windows Explorer का, आपको उस पर क्लिक करना है, आपका Windows Explorer ओपन हो जाएगा. Then comes viewing files and folders. Windows provide many ways to arrange and identify your files while you are viewing them. The information can be viewed in different modes by clicking on the drop down arrow of more option located on the right hand side of the toolbar. अगर आपको फाइल्स या फोल्डर्स देखने हैं, आपने सबसे पहले तो अरेंज कर रखा होगा अपने फाइल्स को, आइडेंटिफाई करना होता है फाइल्स को, तो उसके आपके अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है अलग अलग मोड्स में आपको अवेलेबल रहता है. आपके पास अलग अलग मोड्स होते हैं, उसमें जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आता है मोर ऑप्शंस का, तो आपकी फाइल जहां पर भी लोकेटेड होती है वहां पर आप उसको देख सकते हैं. एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स. This option displays extra large sized icons of the files and folders. Changing to this view is useful if you are working with images and video files. Large icons, this option displays the files and folders as a large sized icons. Medium icons, it displays the files and folders as medium sized icons, giving you a better idea of the file or folder content. Small icons, it's display the files and folders as small icons without a preview of its contents. The file or folder name is displayed next to the icon. List, the list view displays the contents as a list of files or folders names preceded by small icons. This view is useful if your folder or drive contains many files and you want to scan the list for a particular file name. Details, as the name suggests, the detail view provides detailed information of files and folders including name, type, size and date on which it was last modified. Tiles, this view displays files and folders as medium-sized icons along with the basic informations such as type and size. Content, it displays each file and folder on a separate row along with details like date, modified, size, author, etc. तो आपका जो अलग अलग टाइप का फाइल को और फोल्डर्स को व्यू करने के कुछ आपके तरीके होते हैं. सबसे पहला आता है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स. ये आपकी जो बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं, आपके म्यूजिक होती हैं, फाइल्स होता है, उनको जब आपको बड़े आइकन्स में देखना होता है तो आप इस ऑप्शन को प्रेस करते ही आपके जो फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, वो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स में आ जाती हैं और उसी के नीचे उनके नाम भी लिखे होते हैं. फिर आपके लार्ज आइकन्स होते हैं, इसमें आपके जो फाइल और फोल्डर्स होते हैं उनके ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा लार्ज से थोड़े छोटे लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बड़े बड़े दिखाई देते हैं. फिर आपके मीडियम आइकन्स आते हैं. मीडियम आइकन्स जो होते हैं वो आपको थोड़ा बेटर आइडिया देते हैं आपके फाइल या फोल्डर के नाम के बारे में. ये आपके थोड़े छोटे होते हैं लेकिन अच्छे खासे आपको विजिबल होते हैं. फिर आपके स्मॉल आइकन्स आते हैं.
स्मॉल आइकन्स जो होते हैं उनकी जो नाम होते हैं वो आपको आइकन्स के साइड में आपको इनके नाम दिखाई देंगे, और जब आपको एक साथ बहुत सारी फाइल्स को व्यू करना होता है तो आपका स्मॉल आइकन्स बेस्ट रहता है। देन कम्स योर लिस्ट। लिस्ट जो होती है उसमें आपके प्रिसीडेड फॉर्म में आपके नाम या डेट जिस भी तरीके से आपने मॉडिफाई कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पूरी फाइल की लिस्ट एक जगह पर दिखाई देती है। देन कम्स डिटेल्स। डिटेल्स में वो इंफॉर्मेशन होती है आपकी फाइल्स या फोल्डर्स के बारे में, जैसे क्या साइज है, किस बारे में आपका फाइल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर हैं। बेसिकली जितनी भी डिटेल्स आपकी डेटा या डॉक्यूमेंट के बारे में होगी वो आपको इस सेक्शन में दिखाई देगी। टाइल्स। जो टाइल्स होती हैं जो आपको बेसिक टाइप या साइज होता है आपकी किसी भी फाइल या फोल्डर का, वो आपको डिस्प्ले करता है। कंटेंट। कंटेंट में आपका जो साइज होता है, ऑथर कौन है आपकी जो भी फाइल है, किसने बनाई है, क्या लोकेशन है उसका, तो बेसिकली आपका जो कंटेंट होता है आपकी फाइल या डॉक्यूमेंट का वो आपको इस सेक्शन में दिखाई देगा। नेक्स्ट कम्स वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल। Control panel is a system folder containing option with which we can make changes in the appearance and current settings of the windows. These may include appearance and personalization of the desktop, hardware and software setup and configuration, system and security, networking and internet, user accounts and family safety, setting lock, language and region. These settings control nearly everything regarding Windows appearance, internal settings and personalization. They allow you to set up Windows in the way you want. You can open Control Panel in two ways. Step 1, click on the Start button and select the Control Panel option from the right pane. Or Step 2, double click the computer icon on the desktop, click on the Open Control Panel button located on the toolbar. अब आपका जो कंट्रोल पैनल होता है, बेसिकली आपको कोई भी चेंजेस करने होते हैं आपकी करंट सेटिंग्स में, आपके आइकन्स के अपीयरेंस में, आपके डेस्कटॉप के अपीयरेंस में, तो वो आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो डेस्कटॉप होता है वो किस तरीके का दिखेगा, आपको पर्सनलाइज्ड अपीयरेंस चाहिए, वो भी आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग, आपका सेटअप करना है आपको किसी सॉफ्टवेयर का या किसी हार्डवेयर का, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, सिस्टम और सिक्योरिटी को आपको देखना है, आपकी नेटवर्किंग एंड इंटरनेट का एक्सेस आपको चाहिए, यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, यानी कि आपका सिस्टम सेफ है या नहीं है, कोई वायरस तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, एंटीवायरस है या नहीं है, सेटिंग लॉक, लैंग्वेज, रीजन, टाइम, ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल पैनल से आप कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल पैनल जो होता है आपका जो विंडोज अपीयरेंस होता है, इंटरनल सेटिंग्स होती है, पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल पैनल से करते हैं। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के भी आपके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला आपको या तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल जो कि आपके राइट पेन पे होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर डबल क्लिक करिए कंप्यूटर आइकन पे जो आपके डेस्कटॉप पे है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओपन कंट्रोल पैनल बटन जो कि आपके टूल बार पे लोकेटेड होगा। दोनों ही तरीके से आपका जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो जाएगा। Changing date and time. This option allows you to change the computer's date and time. Step 1, click on the date and time option in control panel. The date and time dialog box will appear. Step 2, by default, the date and time tab is selected. उसके बाद आप इसी कंट्रोल पैनल से आपके कंप्यूटर की जो डेट एंड टाइम होती है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करना है आपके कंट्रोल पैनल पे, और उसके बाद आपके सामने डेट एंड टाइम कंट्रोल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो आपका डेट एंड टाइम टैब है वो सिलेक्टेड है, वहां पर आके आप चेंज कर सकते हैं। टू चेंज डेट, स्टेप 1, क्लिक ऑन द चेंज डेट एंड टाइम टैब. The date and time settings dialog box will appear. Step 2, select the current day in the displayed calendar. You can change the month using the forward, backward arrow buttons present on the calendar. अब अगर आपको डेट चेंज करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको चेंज डेट एंड टाइम टैब पे जाना है। उसके बाद आपके सामने डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना करंट डे जो आपका डिस्प्ले हो रहा है वो आपको दिख जाएगा कैलेंडर पे। अगर आपको मंथ को स्विच करना है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन से आप मंथ को चेंज कर सकते हैं। टू चेंज टाइम, Step 1, to change the hour, select the hour in the text box. Step 2, click on the spin arrows to increase or decrease the hours accordingly. Click OK.
Similarly, you can change the minutes and seconds. अब आपको अगर टाइम चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको आर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले आर पे जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको आर पे क्लिक करना है. आर पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्पिन एरो है, आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है टाइम को अपने अकॉर्डिंग. आपको स्पिन एरो को भी क्लिक करते रहना है. अगर इंक्रीज करना है तो ऊपर की तरफ करिए, डिक्रीज करना है तो नीचे की तरफ करिए. उसके बाद आपको ओके पे प्रेस कर देना है और बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप मिनट्स और सेकेंड्स का टाइम भी चेंज कर सकते हैं. About fonts. Different styles of writing characters, text in a specific size are known as fonts. Some of the popular fonts are Arial, Arial Black, Verdana, Times New Roman, etc. Font settings are used to change the display of text on the screen and the printed text. You can use font settings in control panel to view fonts, add new fonts or delete existing fonts. About fonts जो है, इसमें जाकर आप अपने fonts का जो स्टाइल होता है, बेसिकली जो अपीयरेंस होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं. कुछ आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एरियल, एरियल ब्लैक, वेडाना, टाइम्स न्यू रोमन. तो इन सारे फॉर्मेट्स में आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. कंट्रोल पैनल में जाके आप देख सकते हैं कि अगर आप फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करेंगे तो किस तरीके का देखेगा. तो बेसिकली आप प्रीव्यू कर सकते हैं. Let us see an example here. Step 1. Click on the fonts folder in control panel. The fonts window appears. Step 2. To view the sample of a font, double click on any given font. तो सबसे पहले तो आपको कंट्रोल पैनल में जाकर आपके fonts फोल्डर पे जाना है. आपका एक fonts का विंडो अपीयर हो जाएगा. उसके बाद आपका जो फॉन्ट का सैंपल है, आपको उस पर डबल क्लिक करना है देखने के लिए कि आपका फॉन्ट किस तरीके का दिखाई देगा. To add new fonts to the font list, follow the given procedure. Select the drive and then open the folder that contains the new fonts. Select the font that you want to add and drag it to the fonts folder in control panel. Font will be added in the list of existing fonts. अब अगर आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग फॉन्ट की लिस्ट है उसमें आपको किसी फॉन्ट को या फॉन्ट के स्टाइल को ऐड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ड्राइव सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको ऐड करना है. ड्राइव सिलेक्ट करिए, ओपन करिए उस फोल्डर को जिसमें आपके नए फॉन्ट्स अवेलेबल हैं. आफ्टर दैट आपको जो भी फॉन्ट ऐड करना है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ड्रैग करते हुए आपके कंट्रोल पैनल में जो फॉन्ट्स ग्रुप है वहां तक लेकर आएंगे. आपके जो न्यू फॉन्ट्स हैं वो आपके एग्जिस्टिंग फॉन्ट्स में ऐड हो जाएंगे. You can also delete the existing font. Select the font that you want to delete. Click on the delete button present above the font thumbnails. अब आपको कोई आपका फॉन्ट है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको डिलीट करना है. तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आप सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको डिलीट करना है. सिलेक्ट करने के बाद आपका वो फॉन्ट आपको डिलीट बटन पे प्रेस करना है जो कि आपके फॉन्ट थंबनेल के ऊपर प्रेजेंट होगा. तो आपका फॉन्ट डिलीट हो जाएगा. Next comes your changing the mouse settings. You can customize your mouse settings in various ways, such as changing the appearance of the mouse pointer, changing the functions of your mouse buttons, or altering the scroll speed of the mouse wheel. तो आपका जो माउस होता है उसकी सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं. किस तरीके का आपका पॉइंटर दिखाई देगा, आपका जो राइट क्लिक होता है, स्क्रॉल आप करते हैं, उसकी स्पीड क्या होगी. तो बेसिकली आपका माउस किस तरीके से फंक्शन करेगा उसको भी आप ऑल्टर कर सकते हैं. तो उसके लिए आपके कुछ स्टेप्स हैं. Step 1. Select the mouse option in the control panel dialog box. The mouse properties dialog box will appear. Step 2. Click on the buttons tab. It provides options to change the settings of mouse buttons to right-handed or left-handed. Step 3. Under button configuration section, select the checkbox to make changes in the button on the right, the one you use for primary functions such as selecting and dragging. Step 4. To change the double click speed of your mouse, drag the slider towards left to make it slow and towards right to make it fast. To test the speed, double click the folder given on the right side. If the folder does not open or close, try using a slower setting. Step 5. To change the appearance of your mouse pointer, click on Pointers tab. Here you can change the size, color and shape of your mouse pointers. Step 6. To change the pointer, select the kind of pointer you wish to have. Then select the Browse tab and double click on the file name of the chosen pointer. Watch the preview. Click on the Apply button and then click OK to save the changes. Step 7. If you prefer to have the original set of pointers, click on Use Default tab to return to default pointers.
Step 8. To adjust the speed of your mouse pointer, click on the pointer options tab. Step 9. Drag the slider from slow to fast under the motion section. Click on the apply button and then click OK. तो सबसे पहले तो आपको जो कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स होता है उसमें आपको माउस ऑप्शन पे क्लिक करना है. माउस ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. उसमें आपको क्लिक करना है बटन्स टैब पे. बटन्स टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास माउस बटन्स की जो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होती है वो आपके ऑप्शंस आपको दिखाना शुरू कर देगा. उसमें आपको जो आपका बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन होता है उसके अंडर में आपको चेक बॉक्स होता है टू मेक चेंजेस टू द बटन ऑफ योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड. तो आपका जो भी प्राइमरी फंक्शन है सच एज सिलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको डबल क्लिक की जो स्पीड है वो आपको चेंज करनी है तो आपको ड्रैग करना है स्लाइडर आपका टूवर्ड्स लेफ्ट अगर आप वो स्लो करना चाहते हैं, और राइट की तरफ अगर आपको उसकी डबल क्लिक की स्पीड को फास्ट करना है. टू टेस्ट द स्पीड, अब आपकी स्पीड आप चेंज कर चुके हैं, आपको टेस्ट करना है कि वो स्पीड स्लो या फास्ट हुई है या नहीं. तो उसके लिए आपको जो फोल्डर है आपके राइट साइड पे गिवन होगा वो आपको ओपन करना है. अगर वो फोल्डर ओपन नहीं होता है या क्लोज नहीं होता है, ट्राई यूजिंग अ स्लोअर सेटिंग. ये करने के बाद अगर आपको माउस पॉइंटर का जो अपीयरेंस है वो चेंज करना है तो उसके लिए आपको पॉइंटर्स टैब पे क्लिक करना है. पॉइंटर्स टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप साइज, कलर और शेप आपके माउस पॉइंटर की चेंज कर सकते हैं. अब आपका जो माउस पॉइंटर है उसका काइंड ऑफ पॉइंटर जैसा पॉइंटर वो दिख रहा है वो अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप ब्राउज टैब पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे फाइल नेम पे ऑफ द चूजन पॉइंटर. जो भी आपका पॉइंटर है आपने चूज करा हुआ है आपको उस पर डबल क्लिक कर देना है. डबल क्लिक करने के बाद अगर आपको प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू देखने के बाद आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है और अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है. उसके बाद अगर आप चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल सेटिंग है बाय डिफॉल्ट जो आपका सेटिंग था आपको वापस उसी पे जाना है तो आपको क्लिक करना है यूज डिफॉल्ट टैब ताकि आपका जो पॉइंटर है वो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट पॉइंटर था उस पर शिफ्ट हो जाए. इसके बाद अगर आपको अपने पॉइंटर की स्पीड को चेंज करना है, माउस पॉइंटर की स्पीड को चेंज करना है तो आप क्लिक करेंगे पॉइंटर ऑप्शंस टैब पे. वहां पर आपका ट्रैक जो आपका स्लाइडर होता है स्लो टू फास्ट होगा अंडर द मोशन सिलेक्शन. जो भी आपको स्लो चाहिए स्लो करिए, फास्ट करना है फास्ट करिए और उसके बाद अप्लाई बटन पे आप क्लिक करेंगे. अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे प्रेस करना है, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी. Why to double click on the mouse? Windows has a feature to replace double click setting of a mouse with single click. तो आप जो डबल क्लिक करते हैं उसकी जरूरत क्यों होती है? तो माउस के जो आपकी ऑप्शंस होते हैं उसके अंडर में आप डबल क्लिक को सिंगल क्लिक में भी चेंज कर सकते हैं. Follow these simple steps. Step 1. Click on the start button and open control panel. Click on the folders option. The folder options dialog box appears as shown in the figure. Activate a single click to open an item option under click items as follows section. Step 2. From the single click sub options, prefer to activate underline icon titles only when I point at them. Step 3. Click on apply and then click OK. Enjoy the experience of working with single click now. Remember, to select any item from a list, you just have to place the mouse pointer there. The item would be highlighted. To open any program or document, just click on it. तो अगर आपको अपना डबल क्लिक वाले फीचर को सिंगल क्लिक में शिफ्ट करना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे और आप ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको फोल्डर ऑप्शंस पे जाना है. फोल्डर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फोल्डर ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. जैसे ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपको एक्टिवेट करना है सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम. ये ऑप्शन आपको मिलेगा क्लिक आइटम्स एज फॉलोज सेक्शन के अंडर में. फिर आपको सिंगल क्लिक सब ऑप्शंस को आपको प्रेफर करना है टू एक्टिवेट अंडरलाइन आइकन टाइटल्स ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम. ये करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है. अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे प्रेस कर देना है. अगली बार आप जब भी आपको कोई भी आइकन को ओपन करना है तो सीधे आपको माउस पॉइंटर उस आइकन के ऊपर लेके जाना है. आप जब उसके ऊपर लेकर जाएंगे और क्लिक नहीं करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा. हाईलाइट होने के बाद अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे, आपका वो जो आइकन है वो ओपन हो जाएगा. Put your computer in sleep mode. Sleep is a power saving state wherein a computer does not turn off completely. In this process, monitor and hard disk are turned off,
but the computer puts our work and settings in RAM and draws a small amount of power. It allows the computer to quickly resume full power operation when you start working again. तो आपका स्लीप मोड होता है कंप्यूटर में, या आपके कंप्यूटर को कंप्लीटली बंद नहीं करता है, सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे जो आपकी कुछ प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, वो आपका बंद हो जाता है, लेकिन आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी रैम में स्टोर्ड रहती है. जैसे ही आप वापस से कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां से आपने अपना काम खत्म किया था. फॉलो दीज स्टेप्स टू पुट योर कंप्यूटर इन स्लीप मोड. स्टेप 1, select the start control panel. Step 2, click on the power options category. Step 3, select the power saver radio option. The sleep mode will become active. To make further changes, click on the change plan settings option and select the required settings as per your need. तो आपको अगर स्लीप मोड को एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे. स्टार्ट पे जाने के बाद आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे. कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको पावर ऑप्शंस कैटेगरी पे क्लिक करना है. यहाँ पर आपको पावर सेवर का जो बटन होता है, रेडियो बटन, आपको उस पर क्लिक कर देना है. आपका स्लीप मोड एक्टिवेट हो जाएगा. अब अगर आपको और भी ज़्यादा चेंजेस करने हैं इसके आगे के, तो आपको क्लिक करना है चेंज प्लान सेटिंग्स ऑप्शन पे, और आपकी जो भी रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसे चेंज कर सकते हैं. टू रिवाइज, Windows Explorer is the main tool that you use to interact with Windows 7. You need to use the Windows Explorer to view, explore, or organize libraries, files, and folders. Windows 7 provides 4 default libraries. They are documents, pictures, music, and videos. Control panel is a system folder using which we can make changes in the appearance and current settings of the Windows. Sleep is a power-saving state wherein a computer does not turn off completely. In this process, monitor and hard disk are turned off, but the computer puts our work and settings in RAM and draws a small amount of power. तो आपका जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है वो आपका मेन टूल होता है विंडोज 7 का. विंडोज 7 में आपके अलग अलग टाइप के डिफॉल्ट लाइब्रेरीज होते हैं, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोस. इसके अलावा आपके अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स का अपीयरेंस आप चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा आपका जो स्लीप मोड होता है, स्लीप मोड में आपका हार्ड डिस्क और मॉनिटर, सिर्फ ये 2 चीज़ें टर्न ऑफ होती हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बंद नहीं होता है, और आपका जो काम होता है वो रैम में जाके सेव हो जाता है और खाली थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पावर को फेच करता है. वापस से आप ऑन करेंगे तो वापस उसी जगह से आप रिज्यूम कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए.